Ji, assalamu alaikum students, how are you? Uh, During this slideshow, I'm going to discuss with you chapter number 2, and this chapter will familiarize you with the forces that shape competition in a company's external environment and today's techniques for identifying strategic opportunity for the strategic opportunities and the threats. The central theme is that if a company is to survive and prosper, its management must understand the implication of the environmental forces have for strategic opportunities and threats. And this chapter defines the industry, sector, market segment, and the changes in the industry boundaries. And this chapter will discuss it about the using Porter 5 forces model as an overall framework. Additionally, 6 force, which is about the complementary, is introduced and discussed. Then this chapter discusses the concept of the strategic groups and mobility barriers. Then the end of the chapter, we will before the end of the chapter, discuss the limitations of the Porter 5 forces model and strategic groups and industry life cycles. But that limitations do not hinder you to use that model, but you must be aware about what are the limitations of using this model. And finally, the chapter provides a review of the significant that changes in the macro environment for strategic opportunities and threats. Let me share a slideshow with you. So I'm stopping my video, so that will basically the transmission and transmission will be improved, and you will be better able to concentrate on the slides. Okay, this is a chapter number 2, which is about the external analysis and the identification of the opportunities and the threats. These are the learning objectives. The primary review the primary technique used to analyze competition in an industry environment, the 5 forces model. तो मैं आपके साथ बाइलिंगुअली रहूंगा ताकि उर्दू और अंग्रेजी दोनों में आपके साथ बात हो सके। बुनियादी तौर पे आपने पोर्टर के 5 forces मॉडल को हमने डिस्कस करना है और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है इंडस्ट्री एनालिसिस के हवाले से, फिर इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल मॉडल क्या है और फिर मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर हैं जो कि कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे हमारा फोकस रहेगा। ओके, तो स्ट्रैटेजी formulation begins with an analysis of the forces that shape competition within the industry in which a company is based. The goal is to understand the opportunities and threats confronting the firm and to use this understanding to identify strategies that will enable the company to outperform its rivals. तो बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का फर्स्ट स्टेप है वो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट। अब जो वर्ड अपॉर्चुनिटी का है इससे क्या मुराद है हमारी, और वर्ड जो थ्रेट का है उससे हमारी क्या मुराद है। अपॉर्चुनिटीज अराइज when a company can take advantage of conditions in its industry environment to formulate and implement strategies that enable it to become more profitable। यानी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके कंपनी जो कि उसको प्रॉफिटेबल लगती हैं। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जिसको कंपनी आइडेंटिफाई करे और फिर उनको देखते हुए इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हो। और थ्रेट्स वो हैं arise when conditions in the external environment endanger the integrity and profitability of the company। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि नोकिया एक बड़ी लीडिंग मोबाइल कंपनी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसके इतने शेयर थे अपने पीक के ऊपर के 40% ऑफ द जो भी मोबाइल बिकते थे वो नोकिया के थे। लेकिन नोकिया ने कुछ थ्रेट्स को जो है वो उस तरह ओवरसी नहीं किया। जिस तरह गूगल एंड्रॉयड बेस्ड फोन आए, 3G टेक्नोलॉजी आ गई, फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जिस तरह एप्पल आईफोन आ गए, फिर गूगल बेस्ड जो एंड्रॉयड सिस्टम थे उस तरह के सॉफ्टवेयर उस तरह के टेलीफोन आ गए।
तो नोकिया ने ये सब थ्रेट्स जो थे उस तरह ओवरसी नहीं किए। जब तक वो ओवरसी किए तब तक ये बहुत सारे फैक्टर जो थे वो इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हो चुके थे। तो अगर ऐसी कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो जो कि इंटेग्रिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को थ्रेट करें, तो वो थ्रेट कहलाती हैं उस इंडस्ट्री के हवाले से। उन कंपनी जो उस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनके हवाले से वो फैक्टर जो होंगे वो उसके लिए थ्रेट होंगे। अब हम वर्ड इंडस्ट्री की तरफ आते हैं कि इंडस्ट्री का क्या मुराद है। डिफाइनिंग एन इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री कैन बी defined as a group of companies offering products or services that are close substitute for each other. That is, products or services that satisfy the same basic customer needs. Comparator, closest comparator, its rivals are those that serve the same basic consumer needs. Or external analysis begins by identifying the industry within which a company competes. To do this, manager must start by looking at the basic consumer needs their company is serving, which involves taking a customer-oriented view of their business rather than product-oriented. मतलब इंडस्ट्री जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनी है जो कि एक जैसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर कर रही है जो कि एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है और एक जैसी ही कंज्यूमर नीड को वो सेटिस्फाई कर रही है। जिसमें आप कोक की एग्जांपल लें तो कोक जो है वो किस कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो थर्स्ट को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन कोक ने 1990s में अपने बिजनेस को जब डिफाइन किया तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड व्यू डेफिनेशन थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि दैट वी आर डीलिंग विद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। लेकिन बहुत से नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो भी जो है थर्स्ट को जो है वो एड्रेस करते हैं, थर्स्ट की नीड। इस केस के अंदर क्या हुआ, उन कंपनीज को ने जो कि नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे ऑरेंज जूस है या टी है या और कोई शरबत वगैरह है, तो उन्होंने मार्केट शेयर जो है इस इंडस्ट्री का कैप्चर करना शुरू किया। इसलिए आपने देखा कि कोक भी पानी को भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, फिर उन्होंने ऑरेंज जूस भी इंट्रोड्यूस किया। तो बुनियादी वजह ये थी कि जो बेसिक कंज्यूमर नीड है उसके टर्म्स के अंदर इंडस्ट्री को डिफाइन जब किया तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री की बाउंड्रीज को बेहतर तौर से जान सकते हैं। तो पहली बात तो आपकी कस्टमर की किस नीड को आइडेंटिफाई कर रही है इंडस्ट्री, और फिर इंडस्ट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं क्या। आपके इस रीजनल आया कि आपकी कंपनी रीजनल लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही है, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, या जो भी आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उस लेवल के ऊपर जो होगा ऑपरेशन इंडस्ट्री की डेफिनेशन होगी। तो अगर जैसा कोक और पेप्सी की बात की जाती है तो ये ग्लोबल लेवल की कंपनीज हैं। अगर लोकल कंपनीज की आप बात करेंगे, जिस तरह अगर कोई गुरमे कोला है तो उनकी कुछ रीजनल बाउंड्री जो है वो रीजनल लेवल। अच्छा, राइवल से हमारी मुराद है कंपनी क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर जो कि एक क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करते हैं। देखिए कोक का सब्स्टिट्यूट जो क्लोजेस्ट होगा वो कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर पेप्सी है या फिर कोई और कोई कोला ड्रिंक है या सोडा वाटर है। और जो ज़्यादा अगर क्लोजेस्ट कंपटीशन जो होता है जिनके साथ हो रहा है वो राइवल कंपनी कहलाती है। जो एक्सटर्नल एनालिसिस का पहला स्टेप है कि आप उस इंडस्ट्री को डिफाइन करें जिस इंडस्ट्री के अंदर आप ऑपरेट करें, और इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीज को भी डिफाइन करें जहां बेसिक कस्टमर नीड्स सर्व बाय द। और बाउंड्रीज चेंज भी होती रहती हैं। बाउंड्रीज इस तरह चेंज होती हैं कि आपकी बाउंड्रीज जो होती हैं कंपनी जब मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं उनके ऑपरेशन एक्सटेंड हो जाते हैं, इस तरह उनकी बाउंड्रीज जो है वो चेंज होती हैं। अब हम आते हैं पोर्टर कंपैरेटिव फोर्सेस मॉडल के हवाले से। तो वंस द बाउंड्रीज ऑफ एन इंडस्ट्री हैव बीन आइडेंटिफाइड, manager face a task of analyzing comparative forces within that industry environment in order to identify opportunities and threats. अच्छा, माइकल पोर्टर जो था वो हार्वर्ड का एक प्रोफेसर था। उसने एक फ्रेमवर्क आप बताया, उसने कहा कि भी 5 फोर्सेज होती हैं जो कि मैनेजर को हेल्प करती हैं इस एनालिसिस करने में कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और किस तरह के थ्रेट्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर शामिल हैं। ओके, तो आर बी रिकॉर्डिंग। ओके, यस इट इज रिकॉर्डिंग। आई वाज जस्ट चेकिंग ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनीहाउ, तो इसमें जो कि कंपैरेटिव फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एक है रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कंपैरेटिव, फिर है इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग एस्टैब्लिश्ड कंपनी विद इन द इंडस्ट्री, जो कि आपको मेन में बीच में सर्कल आपको नजर आ रहा है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है,
फिर पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइडर्स हैं, फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। तो अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये माइकल पोर्टर का एक आर्टिकल था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, हाउ कंपैरेटिव फोर्सेस शेप स्ट्रैटेजी। ये वहीं से लिया गया है, मार्च और अप्रैल 1979 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो पहली जो फोर्स है, तो बुनियादी तौर पे जब आप किसी इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं तो इंडस्ट्री क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या आपकी कंपनी को फैसिलिटेट करती है, या फिर उस कंपनी के अंदर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, या फिर थ्रेट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट जो है उसमें से इफेक्ट हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे एज ईच ऑफ दीज फोर्सेज ग्रो स्ट्रॉन्गर, it limits the ability of established company to raise prices and earn greater profit. Within this framework, a strong comparative force can be regarded as a threat because it depresses profit. तो जो स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव फोर्स होगी, अगर मौजूद होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा, राइवलरी होगी एस्टैब्लिश कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशो है और जो ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो पहला जो फोर्स है, रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कस्टमर, सॉरी पोटेंशियल कंपैरेटर, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो पोटेंशियल कंपैरेटर से हमारी क्या मुराद है। पोटेंशियल कंपैरेटर्स आर दोज कंपनी दैट आर नॉट करंटली competing in an industry but have the capability to do so if they choose. So established companies already operating in an industry often attempt to discourage potential competitors from entering the industry because as more companies enter, it becomes more difficult for established companies to protect their share of market and generate profits. A high risk of entry by potential competitor represents a threat to the profitability of established company. If the risk of the new entry is low, established companies can take advantage of this opportunity, raise prices and earn greater returns. तो पोटेंशियल कंपेटिटर का मतलब ऐसी कंपनी जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में कम्पीट नहीं कर रही है लेकिन वो आ सकती हैं, पोटेंशियल कंपेटिटर बन सकती हैं। इधर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आप देखते हैं तो नोकिया जो अपना कंपेटिटर समझा करता था, वो एरिक्सन को, मोटोरोला को समझा करता था। लेकिन जो पोटेंशियल कंपैरेटर्स है, जिस तरह के एप्पल है, या जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, या गूगल है सर्च इंजन कंपनी थी, वो भी पोटेंशियल कंपैरेटर बन सकते थे और बन गए, एक्चुअल कंपैरेटर बन गए थे इंडस्ट्री के अंदर एंटर होकर। तो ये मालूम अगर तो मसलन रिस्क ऑफ द एंट्री अगर आपकी स्ट्रांग होगी, मतलब ऐसा आसान नहीं होगा उस इंडस्ट्री के अंदर दाखिल होना, तो स्टैब्लिश कंपनी जो है उनके पास एक मार्जिन ऑफ प्ले जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आसान होगा, बहुत सारे कंपैरेटर्स में दाखिल हो सकते हैं, जो एस्टैब्लिश कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो रिस्क ऑफ एंट्री जो है पोटेंशियल कंपैरेटर का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह के बैरियर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने के हवाले से, और दैट फैक्टर मेक इट कॉस्टली फॉर द कंपनी टू एन इंडस्ट्री। मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में दाखिल होना है तो बहुत ज़्यादा किस तरह के फैक्टर होंगे। अगर फैक्टर ऐसे हैं जहाँ के बैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उधर के पोटेंशियल कंपैरेटर जो होंगे वो कम दाखिल होंगे। So the greater the cost potential competitor must bear to enter in the industry, the greater the barriers to enter, and the weaker this competitor force. High entry barriers may keep potential competitors out of an industry, even when industry profits are high. Important barriers to entry include economies of scale, brand loyalty, absolute cost advantage, customer switching, cost and government regulation. अब अगर तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि कुछ बैरियर होते हैं, अगर ये बैरियर्स हाई होंगे तो जो पोटेंशियल कंपैरेटर हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर आसानी से दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस तरह के बैरियर जो हैं वो लो होंगे तो एक पोटेंशियल कंपैरेटर जो है उस इंडस्ट्री के अंदर दाखिल आसानी से हो सकता है। पहला फैक्टर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद है व्हेन यूनिट कॉस्ट फॉल एज अ फर्म एक्सपेंड्स इट्स आउटपुट। सोर्स ऑफ इकोनॉमीज इंक्लूड cost reduction gained through mass producing a standardized output, discounts on bulk purchases of raw material inputs and component parts, advantage gained by spreading fixed production costs over a large production volume, or the cost saving associated with distribution, marketing, and advertising costs over a large volume of output. तो एक कंपनी एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी फिक्स कॉस्ट होती है वो स्प्रेड हो जाती है। इसकी वजह से कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेती है उस इंडस्ट्री के अंदर। इससे उनका जो प्राइस का और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है।
तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ी हाई अचीव कर ली है उन कंपनीज ने, तो जो बैरियर है वो हाई हो जाएगा पोटेंशियल कस्टमर का, पोटेंशियल कंपैरेटर का एंटर होने के बाद। फिर बात है ब्रांड लॉयल्टी की। जो ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट व्हेन कंज्यूमर हैव अ preference for the products of established companies. A company can create brand loyalty by continuously advertising its brand name, products, and company name. Patent production of its products, product innovation achieved through company research and development program, and emphasis on high quality product and exceptional after sales service. Significant brand loyalty makes it difficult for the new entrants to take market share away from established companies. अभी आप पेप्सी और कोक के एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्रिकेट मैचेस को सपोर्ट करते हैं, म्यूजिक के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं, ताकि एक सिग्निफिकेंट ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो। और इसकी वजह से बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर किसी सोडा ड्रिंक का, आम सोडा ड्रिंक का दाखिल होना जो है बड़ा डिफिकल्टी होता है। थर्ड है जिसकी वजह से रिस्क ऑफ एंट्री जो है बाय पोटेंशियल कस्टमर जो है वो कम हो सकती है अगर वो हाई है। Sometimes established companies have an absolute cost advantage relative to the potential entrants, meaning that entrant cannot expect to match the established company's lower cost structure. Absolute cost advantage arise from three main sources: superior production operation and processes due to accumulated experience, patent और trade secret. देखिए, एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने से एक कंपनी का एक एक्सपीरियंस कर्व क्रिएट हो जाता है, उसका एक लर्निंग कर्व क्रिएट हो जाता है, जिस काम वो इतने अरसे से कर रहे हैं उसके अंदर वो एक कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। जो नए लोग आते हैं वो अगर उस तरह का उन्होंने कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते तो फिर वो उनके लिए उस इंडस्ट्री का अंदर एंट्री जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर उन कंपनी में जो बड़े अरसे से काम कर रही हैं उन्होंने एक एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व और अपने पेटेंट्स और ट्रेड सीक्रेट डेवलप कर, then control of particular inputs required for production such as labor, material, equipment और management skill that are limited in supply। यानी जो कि अगर कंपनीज के पास अगर उस इंडस्ट्री के अंदर एक लिमिटेड ऐसी ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है और उन कंपनी के लिए काम कर रही है, और मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो कि लिमिटेड हैं जो उस कंपनी के हवाले से काम कर रहे हैं, मटेरियल, इक्विपमेंट और लेबर है, तो अगर एस्टैब्लिश कंपनी ने उनको अपने पास एक्वायर किया हुआ और इंडस्ट्री में उनके अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है, तब भी पोटेंशियल कंपैरेटर का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। एक्सेस टू चीपर फंड बिकॉज एग्जिस्टिंग कंपनी रिप्रेजेंट लोअर रिस्क देन द न्यू एंट्रेंट। अच्छा, कैपिटल रेज करना जो एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए इसलिए आसान है क्योंकि वो बड़े अरसे से उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। उनकी एक आप ये समझ लें कि कैपिटल क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद है वहाँ। उसके मुकाबले में जो नई जो कंपनी आती है, अगर वो बिल्कुल नया ग्रुप है तो उनके लिए फिर कैपिटल को रेज करना ऐसी इंडस्ट्री के अंदर। फिर है स्विचिंग कॉस्ट। And switching cost arises when a customer invests time, energy, and money switching from the products offered by one established company to the products offered by the new entrant. When switching costs are high, customer can be locked into the products offering of established companies even if new entrants offer better products. अगर कोई नया कंपैरेटर आता है और वो बेहतर प्राइस भी दे रहा है लेकिन लोगों की स्विचिंग कॉस्ट हाई है, अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपको जो कनेक्शन दिया हुआ है आपने अपने मोबाइल फोन का और वो आप पे कोई बिजनेस आपने सूट ले लिया और वो आपको 1 साल के लिए पाबंद करें कि जनाब अगर आप 1 साल से पहले हमारा अगर ये कनेक्शन छोड़ेंगे तो आपको ये पेनल्टी पड़ेगी। उस केस के अंदर जो कॉस्ट आप बेयर करेंगे, अगर इसको छोड़ के किसी नए एंट्रेंट के पास जो बेहतर प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहा है या बेहतर सर्विस ऑफर कर रहा है, तो वो जो स्विचिंग कॉस्ट होगी वो अगर बहुत हाई है, तब भी जो होगा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा वो स्विच नहीं करेगा। अगर वो कम है तो फिर उनके लिए स्विच करना जो होगा वो आसान है। फिर है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। और गवर्नमेंट रेगुलेशन, हिस्टोरिकली गवर्नमेंट रेगुलेशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजर एंट्री बैरियर्स for many industry. The comparative forces model predict that falling entry barriers due to government deregulation will result in a significant new entry, an increase in the industry competition and the lower industry profit rate. मतलब गवर्नमेंट की डीरेगुलेशन, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को अगर चाह रही है कि वो ग्रो करे तो गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से न्यू एंट्रेंट को सपोर्ट करती है, न्यू एंट्रेंट के हवाले से उनको इंसेंटिव देती है ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर आए। अगर तो डीरेगुलेशन है तब भी रिस्क ऑफ एंट्री पोटेंशियल कंपैरेटर जो है वो बढ़ जाता है। बहरहाल अगर हम इसको समराइज करें, established companies have built brand loyalty for their products, have an absolute cost advantage over a potential competitor, have significant scale economies, and are the beneficiaries of high switching costs or enjoy regulatory protection.
the risk of the entry by the potential competitor is greatly diminished. It is a weak comparative force. Consequently, established company can charge high prices and industry profits are therefore higher. Evidence from academic research suggests that the height of barriers to entry is one of the most important determinants of the profit rates within the industry. दोबारा इसमें आपकी स्ट्रेटजी इन एक्शन के अंदर सर्कमवेंटिंग एंट्री बैरियर इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के हवाले से एग्जांपल दी हुई है उन्होंने एक कैनेडियन बॉटलिंग कंपनी के हवाले से किस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया, किस तरीके से वॉलमार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोक और पेप्सी का जो कि मार्केट शेयर है वो कैसे कैप्चर किया। तो ये अच्छी एग्जांपल है रिस्क ऑफ एंट्री और पोटेंशियल कंपैरेटर के हवाले से। कारण अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं जो कि राइवलरी अमंग एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। ये सेकंड कंपैरेटिव फोर्स है जो पोर्टर ने आइडेंटिफाई की और सेकंड इसका मतलब है जो राइवलरी जो कि एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के दरमियान होती है विद इन द इंडस्ट्री। और rivalry refers to the comparative struggle between companies within an industry to gain market share from each other. And four factors have a major impact on the intensity of rivalry among established companies within the industry. अब rivalry अगर लेट्स से बेवरेज इंडस्ट्री है, पेप्सी और कोक हैं, और अगर आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी देख लें, इस तरह टेलीनॉर है, यूफोन है, वारिद है, मोबिलिंक है, क्या किस तरह की कंपनी के अंदर एक कंपैरेटिव स्ट्रगल होती है अगर क्योंकि मार्केट शेयर एक दूसरे से हासिल करें। तो ये चार बुनियादी फैक्टर्स हैं जो कि मेजर इम्पैक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग एस्टैब्लिश्ड कंपनी विद दैट इंडस्ट्री। तो पहला जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री कंपैरेटिव फैक्टर, दूसरा है डिमांड कंडीशंस, तीसरा है कॉस्ट कंडीशंस और फोर्थ है द हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर्स इन द इंडस्ट्री। तो पहला जो फैक्टर है जो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी को हवाले से इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री का कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर से हमारी क्या मुराद है? कंपैरेटिव स्ट्रक्चर से हमारी मुराद है कि इंडस्ट्री रेफर टू द नंबर एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज इन इट। जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर को पहले से देखना चाहिए कितनी नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स मौजूद हैं, किस तरह के और किस तरह कंपनी सप्लायर तो नहीं, कंपनी की साइज क्या है, कंपनी का और जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का। इससे मुराद है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वेरीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैव अ डिफरेंट इम्प्लीकेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी। अगर एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी और एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है इफ डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनी जिसको ओलिगोपोली भी कह सकते हैं, और बड़े एक्सट्रीम केसेस में एक ही कंपनी हो सकती है, उसकी मोनोपोली हो सकती है, जिस तरह आप लेस्को की देख लें या SNGPL की देख लें, एक मोनोपोली है। एंड तो द कंपनी इज ऑफन इन दिस पोजीशन टू डिटरमिन द इंडस्ट्री प्राइसेस। हमारे केस के अंदर तो भारत गवर्नमेंट इसकी डिटर्मिनेशन करती है इन प्राइसेस के बारे से। तो लो एंट्री बैरियर्स एंड commodity type product that are difficult to differentiate characterize many fragmented industry। अच्छा, लो कमोडिटी टाइप में आप देख सकते हैं जैसा राइस है, शुगर है, फ्लोर है, और इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, तो उस बारे से बहुत सारी कंपनीज होती हैं, फ्रेगमेंटेड होती हैं, बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन टेंड टू रिजल्ट इन अ बूम एंड बस्ट साइकिल एज इंडस्ट्री प्रॉफिट रैपिडली raise and fall. Low entry barriers imply that new entrants will flood the market hoping to profit from the boom that occur when demand is strong and profits are high. Often the flood of new entrants into a booming, fragmented industry creates excess capacity and companies start to cut prices in order to use their spare capacity. The difficulty companies face when trying to differentiate their product from those of competitors can exacerbate this tendency. The result is a price war, which depresses industry profits, forces some companies out of the business, and deters potential new entrants. देखें, अगर ये इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर जिसको हम कहते हैं कि जिसकी डिमांड जो है वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स, यानी बूम साइकिल अगर एकदम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई और बहुत सारे लोगों ने वो ये काम शुरू कर दिया और बड़ी सारी नई कंपनी आ गई हैं, लो एंट्री बैरियर है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है, तो क्या होता है, तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाती है।
हम अपने एजुकेशन में भी देखते हैं, जब एक ज़माने में कंप्यूटर्स का मामला आया था इंडस्ट्री का, इतने सारे कॉलेजेस आ गए। पहले जो कुछ कॉलेजेस थे वो हाई फ़ी चार्ज कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते चले गए, नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ती चली गई, कॉलेजों की फ़ीस जो है उस लिहाज से उतनी एक्सपेंसिव नहीं रही। अ, अभी भी है कुछ अच्छी जो हाई क्वालिटी है, वो डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करती है। इसी तरह बिज़नेस एजुकेशन जब आई तो पहले-पहले कम-कम लोग ऑफ़र कर रहे थे, फिर बहुत सारे लोग ऑफ़र करना शुरू कर दिए। इसी तरह कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर एक बूम आता है तो बहुत सारे लोग वो काम शुरू कर देते हैं कि ये काम शुरू कर दिया जाए। और ऐसे तो जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो फिर कैपेसिटी एक्सेस हो जाती है, यानी सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है, तो फिर क्या करते हैं, प्राइसेस को रिड्यूस करते हैं ताकि जो सप्लाई उन्होंने बनाई है उस सप्लाई के हवाले से उन चीज़ों को वो बाहर से बेच सकें और उनको उनको एड्रेस कर सकें ताकि उनकी एक्सेस कैपेसिटी को एड्रेस और the fragmented industry structure then constitute a threat rather than opportunity. Economic boom times in fragmented industry are often relatively short-lived because the ease of new entry can soon result in excess capacity, which in turn leads to intense price competition and the failure of less efficient enterprises. तो जब बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी तो वो जाहिर सी बात है अपनी प्राइसेस को कम भी करेंगी, प्राइसेस को कम इसलिए करेंगी ताकि वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को बेच सकें और वही कंपनी सर्वाइव करेंगी जो कि ज़्यादा इफेक्टिव, जो ज़्यादा एफिशिएंट होंगी और जिनके कॉस्ट स्ट्रक्चर और कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग होगी और जो लेस एफिशिएंट एंटरप्राइज होंगी दैट रिजल्ट इन द फेलियर. अच्छा, in consolidated industry, companies are interdependent because one company's comparative action, that means changes in price, quality, etc., directly affect the market share of its rival and thus for their profitability. When one company makes a move, this generally forces a response from its rival, and the consequence of such comparative interdependence can be a dangerous comparative spiral. मसलन एक ज़माने में हो गया था बेवरेज कंपनीज के अंदर, जो पेप्सी और कोक के अंदर प्राइस राइवलरी शुरू हो गई थी और उस प्राइस राइवलरी की केस के अंदर जब एक कंपनी अपनी प्राइस को कम करती है दूसरी कंपनी कम करती है, एक कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है दूसरी कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है। इस केस के अंदर कभी कभार जो कंपनीज हैं इन कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री समटाइम्स सीक टू रिड्यूस दिस थ्रेट by following the price set by the dominant company in the industry. कि एक प्राइस को वो सेट कर लेते हैं आपस में, लेकिन बाहर कंपनी मस्ट बी केयरफुल फॉर एक्सप्लिसिट फेस टू फेस प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट्स बिकॉज दे आर इलीगल. एक कभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, जैसे अगर आपको कोक है वो अगर 25 की मिल रही है तो पेप्सी भी 25 की मिल रही है, अगर हाफ लीटर है वो 45 की मिल रही है तो उनकी भी 45 की मिल रही है. तो अगर वो प्राइस कंपटीशन के अंदर जाएंगे तो फिर दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए आप देखते हैं कि रमजान के अंदर दोनों ही ऑफर लगाते हैं ताकि जो है प्राइस के हवाले से उनकी डिमांड जो है वो इफेक्ट ना हो. फिर जो दूसरा फैक्टर है इंडस्ट्री डिमांड का, और इंडस्ट्री डिमांड से मुराद है द लेवल ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड इज अनदर डिटरमिनेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी among established company. Growing demand tend to reduce rivalry because all companies can sell more without taking market share away from the other companies. Demand declines when customer exit the marketplace or where each customer purchase less. तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो फिर तो ग्रोथ है और कंपनी जो है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इंक्रीज कर रही है. लेकिन किसी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर डिमांड जो है डिक्लाइन कर रही है, कस्टमर की बाइंग पावर कम हो रही है, कस्टमर जो है वो स्विच कर रहा है तो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट से किसी और की तरफ, तो फिर इस केस के अंदर जो होगा कंपनीज के अंदर जो भी रेवेन्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी. फिर है कॉस्ट कंडीशंस और द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म in an industry. The third determinant of the rivalry in industry where fixed costs are high, profitability tends to be highly leveraged to sales volume, and the desire to grow volume can spark intense rivalry. In situations where demand is not growing fast enough and too many companies are simultaneously engaged in the same action, the result can be intense rivalry and lower profit. इतना एयरलाइन इंडस्ट्री के मैंने एग्जाम्पल दिए, वहाँ हमारा फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है और तो आप देखें बोइंग है और एयरबस है, उनकी फिक्स कॉस्ट इतनी हाई है कि अब वो जो वॉल्यूम, लेकिन उनकी हिस्ट्री इतनी लॉन्ग है उसके हवाले से, एयरप्लेन की सेल्स के हवाले से, कि वो वॉल्यूम जो है अब उस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सेल करेंगे. वो इतनी फिक्स कॉस्ट तो एक लेवल पे कवर कर चुके हैं, तो अपने वॉल्यूम सेल के ऊपर जो भी सेल होती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करते हैं. तो इसलिए अब क्योंकि वो दो ही बड़े मेजर प्लेयर हैं, इसलिए उनकी राइवलरी इतनी, उनकी उन्होंने
स्टैब्लिश कर लिया अपने कॉस्ट कंडीशन की वजह से, तो उन दोनों कंपनी को एक एडवांटेज मिल गया है इस वजह से। फोर्थ है एग्जिट बैरियर्स। और एग्जिट बैरियर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। एग्जिट बैरियर्स आर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड इमोशनल फैक्टर दैट प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम लीविंग एन इंडस्ट्री। If exit barriers are high, companies become locked into an unprofitable industry where overall demand is static or declining. The result is often excessive productive capacity, leading to even more intense rivalry and price competition as companies cut prices, attempting to obtain the customer orders needed to use their idle capacity and cover their fixed cost. तो अगर एग्जैक्ट बैरियर्स जो हैं वहाँ हाई हैं, यानी कि निकलना आसान नहीं है इंडस्ट्री से, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, मसलन आप एग्जैक्ट बैरियर्स इन्वॉल्विंग हो सकते हैं एसेट की बहुत ज़्यादा, अगर आपने स्पेसिफिक मशीन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, ऑपरेटिंग फैसिलिटीज हैं, that are of little or no alternative use or cannot be later sold, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी हाई हो चुकी है, जिस तरह अगर एयरलाइन इंडस्ट्री है, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एयरबस है, बोइंग है, इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी एसेट के ऊपर इतनी हाई हो चुकी है कि उनका वहां से निकलना जो है तो इंडस्ट्री से आसान नहीं है। दूसरा है कि हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ एग्जिट सच एज severance पे, हेल्थ बेनिफिट्स और पेंशन that must be paid to the worker who are being laid off and a company ceases to operate। अगर इस तरह के आपको पैकेज देने पड़ते हैं, लीगली आप बाउंड हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी को वहां से निकालना फिर भी आपके लिए मुश्किल होती है। फिर इमोशनल अटैचमेंट, when a company owners or employees are unwilling to exit an industry for sentimental reason or because of some pride or some history, हमारे फोर फादर का बिजनेस है और कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, तब भी उधर से निकलना मुश्किल होता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, बिकॉज द कंपनी रिलाइज ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री फॉर इट्स एंटायर रेवेन्यू एंड ऑल प्रॉफिट, अगर एक ही इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ऑपरेट कर रही है तभी मुश्किल है। और द नीड टू मेंटेन एक्सपेंसिव कलेक्शन ऑफ एसेट्स एट और अबव अ मिनिमम लेवल in order to participate effectively in the industry. Expensive collection of assets, ऐसे assets हैं आपके पास, अगर लेट्स से आप अगर इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके लिए आप अगर इलेक्ट्रोड्स जो उसकी बैटरीज हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंसिव कलेक्शन ऑफ एसेट्स हैं, उनके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरह की मशीनरी, उसमें रोबोटिक्स इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपका उस इंडस्ट्री से निकलना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट। बार ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से निकलना जो है वो एग्जिट बैरियर्स जो हैं उनकी वजह से कभी कभार आपका वहाँ से निकलना जो है मुश्किल हो जाता है उस इंडस्ट्री के। तो बहरहाल अगर ऐसा है कि जहाँ एग्जिट बैरियर बड़े हाई हैं तो फिर और डिमांड अगर लो हो तो भी राइवलरी जो है एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर जो है वो बढ़ जाती है। ओके जी, अब हम थर्ड फैक्टर की तरफ आते हैं जो कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है। This is the third comparative force in the bargaining power of buyer. An industry buyer may be the individual customer who consumes its products and users, or the company that distribute an industry products to end users. तो बायर जो हैं वो आपकी कंपनी के कौन से हैं, जो कि आपके कंज्यूमर हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, या फिर वो हैं होलसेलर और रिटेलर जो कि आपकी कंपनी की चीज़ों को खरीदते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी आपके बायर हैं, रिटेलर और होलसेलर भी नहीं कहते हैं। The bargaining power of buyers refer to the ability of the buyer to bargain down prices charged by the companies in the industry or to raise the cost of the companies in the industry by demanding better product quality and service. Powerful buyers therefore should be viewed as a threat. Buyers are most powerful in the following condition. कब पावर उनकी बढ़ सकती है? When the buyer have choice of whom to buy from. When buyers purchase in large quantities, they can use their purchasing power as leverage to bargain for price reductions. When the supply industry depends upon buyer for a large percentage of its total orders. When switching costs are low and buyers can pit the supplying companies against each other to force down prices. When it is economically feasible for buyer to purchase an input from several companies at once, so that the buyers can pit one company in the industry against each other. Or when buyers can threaten to enter the industry and independently produce the product
the supplying their own needs, they can force down industry prices. This is also called the, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकती है कि बायर जो है वो उन सप्लायर की कंपनीज को परचेज कर। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके अंदर बायर की पावर इंक्रीज हो जाती है। अगर बायर की पावर बहुत हाई है तब भी ऐसी इंडस्ट्री क्रेडिबल नहीं है। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और बार्गेनिंग पावर की फोर्थ कंपैरेटिव फोर्स है द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। The organization that provide inputs into the industry such as material, service and labor, which may be individuals, organizations such as labor unions or companies that supply contract laborers. Bargaining power of suppliers refers to the ability of suppliers to raise input prices or to raise the cost of the industry. In other ways, for example, by providing poor quality inputs or poor service. So powerful suppliers squeeze profits out of an industry by raising the cost of the companies in the industry. Thus, powerful suppliers are a threat. As with buyers, the ability of supplier to make demands on a company depends on their power relative to that of the company. And suppliers are most powerful in this situation. अगर सप्लायर अगर आपको पुअर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लायर अगर आपको अच्छी का मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और महंगा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, कंपनी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न नहीं कर सकेंगे ऐसी इंडस्ट्री के अंदर। सप्लायर की पावर किन सूरतों में बढ़ जाती है? पहली बात, द प्रोडक्ट जो सप्लायर सेल हैज फ्यू सब्स्टिट्यूट्स एंड इज वाइटल टू द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। कम है तो सब्स्टिट्यूट कम है। मतलब अगर आप जिस तरह ये मदरबोर्ड लेने के लिए इंटेल के ऊपर डिपेंड करते हैं लैपटॉप और ये सारी कंपनी, तो वो उसमें उनकी पावर जो है हाई है, उनका सब्स्टिट्यूट ही कम है इंटेल का मदरबोर्ड का। Then the profitability of supplier is not significantly affected by the purchase of the companies in a particular industry. In other words, when the industry is not an important customer to the supplier. एक सप्लायर है, उसकी एक इंडस्ट्री के अलावा मल्टीपल इंडस्ट्री उसकी चीजें उससे खरीदती है, तो फिर वो कहेगा कि जी मेरे पास तो बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको मैं चीजें बेच सकता हूँ। किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी ना हो तब भी सप्लायर की पावर बढ़ जाती है। कंपनीज इन एन इंडस्ट्री वुड एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट स्विचिंग कॉस्ट if they move to the product of a different supplier because a particular supplier products are unique or different. तो अगर इंटेल के मदरबोर्ड नहीं लेने का मुझे, तो वो किस कंपनी की तरफ स्विच करेंगे? उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? वो खुद बनाएंगे या फिर वो क्या करेंगे? इस केस के अंदर कंपनी की अगर बड़ी हाई स्विचिंग कॉस्ट होगी, अगर किसी और कंपनी अगर कोई बना रही है तो सिर्फ स्विच करना उनके लिए बहुत हाई हो जाएगा। इस वजह से भी ऐसी भी इंडस्ट्री के अंदर सप्लायर की पावर बढ़ जाती है। सप्लायर कैन थ्रेटन टू द एंटर कस्टमर इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कि सप्लायर के केस में वो कस्टमर की इंडस्ट्री के अंदर खुद से दाखिल हो जाए। जैसा ये मेट्रो है, आप देखते हैं मेट्रो अपने ब्रांड के साथ भी चीज़ों को लॉन्च करता है और बाकी ब्रांड की भी चीज़ें रखता है। तो अगर मेट्रो ये थ्रेटन करें बाकी सारे के अगर प्राइस आप नहीं देंगे ठीक, तो मैं अपने ब्रांड को लॉन्च करूंगा, अपने ब्रांड को प्रमोट करूंगा, तो दैट कैन बी ऑल्सो थ्रेटन टू द कंपनी, जो कंपनी उनको चीज़ें सप्लाई कर रही है। Companies in the industry cannot threaten to enter the supplier industry and make their own input as a tactic for lowering the price of it. Companies उसकी सप्लायर की इंडस्ट्री में ना दाखिल हो जाए। अगर ऐसा हो तो भी जो है सप्लायर की पावर जो है वो बढ़ जाती है इस केस में। दोबारा अगर सप्लायर की पावर हाई है तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो है राइवलरी जो होगी बढ़ जाएगी कंपनी के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंटर के हवाले से। ये फाइनल फोर्स की पोर्टर के मॉडल में जिसको हम कहते हैं थ्रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ अ डिफरेंट बिजनेसेस और इंडस्ट्री दैट कैन सैटिस्फाई द सिमिलर कस्टमर नीड्स। द एक्जिस्टेंस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अ स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव थ्रेट because this limits the price that companies in a one industry can charge for their product, which also limits industry profitability. जितना आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में है वो सब्स्टिट्यूट किसका है? फेस टू फेस क्लासेस का। इस तरह कोक का सब्स्टिट्यूट जो होगा वो पेप्सी हो जाएगा, या फिर कोई कार्बोनेटेड और सोडा वाटर है, ऑरेंज जूस है, कुछ लोग पानी पीना ही पसंद करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट होंगे वो उस कस्टमर नीड को एड्रेस कर,
जिस नीड को वो कस्टमर की दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एड्रेस करेंगे, उसी कस्टमर नीड को वो एड्रेस करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट करेंगे। तो बहरहाल अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो ये थ्रेट हो जाएंगे, और थ्रेट के केस के अंदर आपकी प्रोडक्ट को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। Then is about the complementer. The complementers are companies that sell products that add value to complement the products of the companies in the industry. Because when used together, the combined product better satisfy customer needs. When the number of complementers is increasing and producing attractive complementary products, demand increases and profits in the industry can broaden opportunities for creating. So conversely, if complementers are weak and are not producing attractive complementary products, they can become a threat, slowing industry growth and limiting profitability. It is also possible for complementer to gain so much power that they are able to extract profit from the industry to which they provide complements. Complementer this strong can be a comparative threat. अच्छा, जिस तरह आप गेमिंग कंसोल्स को देख सकते हैं और फिर गेम्स को देख सकते हैं। अब सोनी है या निंटेंडो है, गेमिंग कंसोल्स हैं, एक्सबॉक्स है, गेमिंग कंसोल्स हैं, और फिर इनके गेम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो जितनी वैरायटी ऑफ गेम्स अवेलेबल होंगी उतनी ज़्यादा इन गेम कंसोल्स की जो होगी वो वैल्यू बढ़ जाएगी, इतना ही इंडस्ट्री के अंदर इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इनकी गेम जो है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर इनकी गेमिंग कंसोल की भी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई गेम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है तो वो डिमांड कर सकती है वो किस गेमिंग कंसोल के ऊपर अपने किस प्लेटफॉर्म गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को लॉन्च करें। इस केस में वो अपना मार्जिन जो है कंसोल के हवाले से बढ़ा सकते हैं, और देन दे कॉम्प्लीमेंटर जो है वो थ्रेट बन सकता है उन कंपनीज के लिए जो गेमिंग कंसोल बना रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटर के हवाले से था। तो अगर इसको समराइज करेंगे कि why industry analysis matter, the analysis of forces in the industry environment using the comparative forces framework is a powerful tool that help manager to think strategically. It is important to recognize that one comparative force often affects others, and all forces needed to be considered when performing industry analysis. Industry analysis inevitably leads manager to think systematically about strategic choices. An analysis of industry opportunities and threats leads directly to a change in strategy by companies within the industry. And this is the crucial point. Analyzing the industry environment in order to identify opportunities and threats leads logically to a discussion of what strategy should be adopted to exploit opportunities and threats. तो बहरहाल ये बुनियादी तौर पे जो बात है वो ये है कि आपने ये जो सारी इन फोर्सेस का एनालिसिस करने का बुनियादी मकसद ये है कि आपने इंडस्ट्री के अंदर जो कि अपॉर्चुनिटी थी उनको आइडेंटिफाई करना है, और जो थ्रेट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है। और ये 5 फोर्सेस किसी आइसोलेशन के अंदर नहीं है, ये 6 जो फोर्सेस हैं, बल्कि इन 6 फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ लिंक भी और दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। तो जितना बेहतर आप इनका एनालिसिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री को पहले डिफाइन करें, फिर इन 5 फोर्सेस और इन 6 फोर्सेस को देखते हुए उस इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट, उस इंडस्ट्री को डिफाइन करें ताकि आपको पता चले किस तरह की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो अभी तक इसके लिए चैप्टर नंबर 2 में यही अभी बात अभी आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।